اس کا 17واں باب یعنی 17واں باب، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب، اس کی 9ویں اور 10ویں 2 آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ تو سبھی میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں، ان 2 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ 9ویں آیت کو ہم بھائی مل کر پڑھیں گے اور 10ویں آیت کو بہنیں مل کر پڑھیں گی۔ سبھی نے نکال لیا؟ تو لکھا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ دل و دماغ کو جانتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے مطابق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں۔ خداوند خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سبھی کہیں آمین آمین ہاللیلویا ہاللیلویا، ایک بار اور ہاللیلویا۔ آئیے سبھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو ایک بار پھر سلام۔ اور دل کے بارے میں ہم خدا کے کلام مقدس میں سے سنیں گے۔ کلام خدا میں سے ہم مختصراً دل کے بارے میں سیکھیں گے۔ کتنے لوگوں کا دل یہاں پر موجود ہے؟ کتنے لوگوں کا دل ہے؟ سبھی لوگوں کا دل ہے نا؟ آپ نے ساتھ ہی ہے نا؟ تو مہربانی کر کے اپنے دل کو ذرا اپنے ساتھ رکھیں اور دل کے بارے میں ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ دل کے بارے میں جیسا کہ کلام مقدس میں بیان ہے، خدا نے فرمایا کہ انسان کا دل لڑکپن سے، کہاں سے؟ کب سے؟ لڑکپن سے، یعنی کہ میرا اور آپ کا دل جو ہے وہ شروع ہی سے برے خیال رکھتا ہے۔ برے خیال شروع ہی سے، لڑکپن سے، کب سے؟ یعنی کہ جب میں بچہ ہی تھا، جب میں چھوٹا ہی تھا، تو میرا دل جو ہے وہ برے خیالوں سے بھرا تھا، اور آج بھی ہے۔ کیا یہ صرف میری اکیلے کی بات ہے یا میرا اکیلے کا دل ہی لڑکپن سے برا ہے؟ تو کیا بائبل مقدس بیان کرتے ہیں؟ انسان کا دل، کس کا دل؟ میں اور آپ کیا ہیں؟ انسان نہیں؟ اگر میں اور آپ انسان ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق میرا اور آپ کا دل جو ہے وہ کب سے برا ہے؟ کب سے؟ لڑکپن سے، یعنی کہ شروع سے میرا اور آپ کا دل برا ہے، لڑکپن سے۔ اور پھر یہاں ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یرمیہ یہاں پر پاک روح کی رہنمائی میں بیان کرتا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ پہلی بات کہ دل ہیلا باز ہے۔ دل کیا ہے؟ ہیلا باز۔ ہیلے باز سے مراد کیا ہے؟ دغا باز، دھوکے باز، فریبی۔ میرا اور آپ کا دل دھوکے باز بھی ہے، دغا باز بھی اور فریبی بھی ہے۔ اس کے اور بھی بہت سے میننگز ہیں، یعنی کہ میرا اور آپ کا دل جو ہے وہ ہیلے باز ہے، دغا باز ہے، فریب سے بھرا ہے، مکر سے بھرا ہے، گمنڈ سے بھرا ہے، تکبر سے بھرا ہے اور غرور سے بھرا ہے۔ ہیلے باز کیا ہے بھائی؟ ہیلے باز ہے اور بگڑا ہوا ہے۔ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ کئی بار ہمیں پتہ نہیں چلتا اپنے دل کے بارے میں کہ میرے دل میں کیا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ حزقیہ بادشاہ کو بھی دیکھیں تو اس نے بھی جب 15 سال عمر خدا سے زیادہ لے لی، یعنی کہ اس کی 15 سال عمر خدا نے بڑھا دی، تو اس کا جی چاہتا تھا کہ میں خدا کے ساتھ اب 15 سال بڑی وفاداری سے چلوں گا، لیکن اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ کل کو ہی میرا دل پھر دغا باز بن جائے گا، پھر میرا دل جو ہے یہ دھوکے باز بن جائے گا، میرے دل میں کل ہی کو ہیلا آ جائے گا، بہانہ آ جائے گا، فریب آ جائے گا، فراڈ آ جائے گا۔ اور اس لیے اس نے دشمن کی فوج کو اپنے سارے خزانے دکھا دیے اور اس کا دل پھر گیا۔ اس کا دل پھر گیا۔ سلیمان کو دیکھیں، اس کا دل بھی پھر گیا، حالانکہ خدا نے اسے بڑی عزت، شہرت، دولت سے، علم و فیض سے، معرفت سے نوازا تھا،
यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझे सब छोड़ जाएंगे, और पतरस ने क्या जवाब दिया कि खुदावंद तुझे सब छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। क्या वो वाकई मसीह के साथ रहा बाद में? नहीं, उसने वाकई उसका दिल भी हीराबाज बन गया, उसका दिल भी धोखेबाज या दगाबाज बन गया, और उसने भी यीशु मसीह का कितनी बार इनकार कर दिया? सिर्फ 3 बार। कितनी बार? 3 बार। यानी कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीराबाज और लाइलाज है। यानी कि ये ऐसा बिगड़ा है, ऐसी खराबी मेरे और आपके दिल में पड़ी है कि ये कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदावंद खुदा दिलों को जांचता, परखता, आजमाता और उसके मुताबिक बदला देता है। हालेलुया। इसके मुताबिक क्या करता है? बदला देता है। इसी के मुताबिक हमारे दिल के ख्यालों के मुताबिक, हमारे दिल की रंशों के मुताबिक, हमारे दिल की चालों के मुताबिक, हमारे दिल के रवैये के मुताबिक खुदा कहता है कि मैं तुम्हें आजमाता हूं और मैं तुम्हें परखता हूं और तुम्हारे दिल के ख्यालों के मुताबिक तुम्हें बदला देता हूं, क्योंकि दिल सब चीजों से ज्यादा हीराबाज और लाइलाज है। सब चीजों से ज्यादा। क्यों सब चीजों से ज्यादा? जब भी हम मानते हैं तो किसकी मानते हैं? बताइए। किसी की नहीं मानते, किसी और की नहीं मानते। तो जब भी मानते हैं किसकी मानते हैं? अपने दिल की। किसी के दिल की बात नहीं कर रहे। जितने भी यहाँ बैठे हैं किसी के दिल की बात ना करें, किसी के दिल के बारे में हरगिज ना सोचें। किसके दिल के बारे में सोचें? सिर्फ अपने दिल के बारे में सोचें। मेरा दिल कैसा है? मेरा दिल कैसा है? मेरा दिल कितना बड़ा धोखेबाज है, मेरा दिल कितना बड़ा अफरेती है, मेरा दिल कितना दगाबाज है, धोखेबाज है, मेरा दिल कितना बड़ा फरेबकार है, मेरा दिल कितना बड़ा रियाकार है, मेरे दिल में क्या क्या है? सिर्फ अपने दिल के बारे में सोचें। दिल सब चीजों से ज्यादा हीराबाज है। क्या वाकई मेरा दिल हीराबाज है? क्या वाकई मेरा दिल जो है वो धोखेबाज, या मेरा दिल यानी कि बिगड़ा हुआ है, या ऐसा बीमार है कि किसी की सलाह को नहीं मानता? हीरेबाज के और भी ज्यादा मीनिंग्स हैं कि बड़ा चालाक, दगाबाज, झूठा, रियाकारी करने का माहिर। और यही लफ्ज़ जो है वो याकूब के नाम के माखज़ के लिए भी है। याकूब के नाम का मतलब बड़ा क्या है? धोखेबाज। यानी कि याकूब भी क्यों धोखेबाज हुआ? क्यों उसने अपने बाप से धोखा किया? क्यों उसने अपने भाई से धोखा किया? क्यों किया? और फिर आगे उसके साथ धोखा क्यों हुआ? क्योंकि याकूब धोखेबाज नहीं था। धोखा कहां था? उसके दिल में। धोखा कहां था? हम बिल्कुल अच्छे होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मेरी और आपकी कंडीशन का, मेरे और आपके रवैये का, मेरे और आपकी रवश का, चालों का, कामों का, बातों का पता कहां से चलता है? मेरे दिल से चलता है। हालांकि याकूब हो सकता है कि वो ना चाहता हो कि मैं अपने बाप के साथ दगा करूं, धोखा करूं। वो नहीं चाहता होगा कि मैं अपने भाई के साथ दगा करूं, धोखा करूं, क्योंकि एक तरफ उसका बाप था और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई था, और उसने अपने बाप से भी धोखा कर लिया और फिर अपने भाई से भी। यानी कि उसका दिल भी क्या था? धोखेबाज। और इसलिए याकूब के नाम का मतलब भी क्या रखा गया है? धोखेबाज। याकूब के नाम का मतलब है धोखेबाज। क्यों? कि उसका दिल धोखेबाज था। और आज हम धोखेबाज नहीं, हम धोखेबाज हैं। हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं, और वाकई हम अपनी जगह पर दुरुस्त और ठीक हैं। तो फिर बिगाड़ कहां पर है? बताइए, बिगाड़ कहां पर है? सभी बोले ना। आज उनका मौजू क्या है? मेरा दिल। क्या भाई? मेरा दिल। और फिर मेरा दिल बहुत बुरा है, बहुत इसमें बिगाड़ है, इतना बीमार है कि इसका इलाज कहीं पर भी नहीं मिलता। दुनिया में दिल का इलाज नहीं है। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट जो है वो दिल के हॉस्पिटल है, बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट जो है वो दिलों के डॉक्टर्स हैं, लेकिन याद रखिएगा दिलों का इलाज सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मैं खुदा ने क्या फरमाया? मैं खुदावंद खुदा दिलों को जांचता, परखता और उनके मुताबिक उनका बदला देता हूं। यानी कि दिल का इलाज सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? खुदा के पास। किसी के पास दिल का इलाज है? किसी
کے پاس دل کا علاج نہیں. یہ جو آپریٹ کرتے ہیں یہ بھی بعد میں دل کو مرمت کے طور پہ بنا دیتے ہیں. یہ سیکنڈ جو ہے وہ دل کو بنا دیتے ہیں اور پھر یہ ایسا دل نہیں رہتا. لیکن اصل دل کا علاج صرف کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس. میں دلوں کو آزماتا پرکھتا اور اس کے مطابق ان کو کیا کرتا ہوں؟ بدلہ دیتا ہوں. میں ان کو اجر دیتا ہوں. میں ان کو پوچھتا ہوں ان کے دلوں کے مطابق. مجھے نہیں پتا, ہم سب کو ایک دوسرے کے دلوں میں بالکل نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا ہے. جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں, ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں, بچوں سے لے کر بڑوں تک, ہم کیا ایک دوسرے کے دلوں کو جانتے ہیں؟ بتائیے. اگر وہ کسی کے دل کو جانتا ہے تو پھر بات کیجئے کہ میں فلاں کے دل کو جانتا ہوں. کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا سوائے کس کے؟ خدا کے. کوئی ایک دوسرے کے دلوں کو نہیں پرکھتا, کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں آزماتا, اور نہ ہی کوئی ہمارے دلوں کے کاموں کے مطابق, باتوں کے مطابق ہمیں کوئی بدلہ دے سکتا ہے, اجر دے سکتا ہے. اور دل جو ہے وہ سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. لا علاج ہے. اس کا کوئی علاج, اس کا کوئی علاج نہیں سوائے خدا کے پاس. اس کا علاج ہے. اور وہ ہم بات کم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زندگی کا سر چشمہ ہے, دل جو ہے وہ زندگی کا بھی سر چشمہ ہے, اور دل جو ہے وہ موت کا بھی سر چشمہ ہی مان لے. یعنی کہ یہ دل جو ہے, میرا اور آپ کا دل چشمہ ہے, میرا اور آپ کا دل چشمہ ہے. اور جو اپنے دل سے باتیں کرتے ہیں, جو ہمارے دلوں سے باتیں نکلتی ہیں, ہماری زبان تک آتی ہیں اور دوسروں کے لیے بڑا ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں. کئی بار باتیں اچھی لگتی ہیں اور کئی بار کسی کی باتیں بری لگتی ہیں. اور وہ باتیں کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ بتائیے کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں؟ یہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز ہے, اور جو کچھ دل میں بھرا ہے وہی زبان پر آتا ہے. یعنی کہ جو کچھ ہمارے دل میں بھرا ہوتا ہے, جو کچھ دل کے اندر ذخیرہ ہوتا ہے جس کام کا, جس بات کا, اور وہی ہمارے دل سے نکلتی ہے. بعض کا ہم کہتے ہیں نا کہ اے گل تے بڑے دنوں تو میرے دل سے سی, لیکن میں کرتا نہیں سا, میں کرتا لیکن چلو اج ہر کے کاری دینے ہیں. اج میں لگا گل کرن اے بڑے دنوں دی کتھے رکھی سی انہیں بھائی, جڑے اج مہینے بعد, سال بعد, 6 مہینے بعد, 6 سال بعد, یعنی کہ عرصہ دراز کے بعد ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, یہ کب سے ہمارے دل میں تھی اور کہاں پر تھی؟ ہمارے دل میں. کئی بار اسی وقت فوراً ہم بات کہہ دیتے ہیں, اور کئی دفعہ کچھ عرصے کا انتظار کرتے رہتے ہیں, ویلا آوے گا تو پھر کرام گے, ویلا آوے گا تے, یعنی کہ اتنی دیر تک یہ بات کہاں پر ہمیں رکھی ہوتی ہے؟ کہاں پر؟ کہتے کو ویلا آوے گا تو پھر گل کریں گے, ویلے تو پہلے نہیں. انہوں نے سارے نے اینڈ کیتا سی, اسی وقت آوے گا تو پھر کریں گے. اور وہ دل جو ہے ہیلا باز ہے, دل جو ہے وہ دغا باز ہے, دل جو ہے وہ دھوکے باز ہے. اور اس دھوکے باز دل, اس فریبی دل کے اندر ہمیں پتہ نہیں وہ کب سے بات رکھی ہوتی ہے, کب سے چھپا کر رکھی ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑا بکس بھی ہے. دل ہمارا جو ہے وہ باتوں کا بہت بڑا بکس ہے, بہت بڑا بکس ہے. اور اس کے اندر, اس بکس کے اندر ہم نے نہ جانے کتنی باتوں کا ذخیرہ کر کے رکھا ہے. اور جب وقت آتا ہے تو جب ہم اس دل سے نکلی ہوئی باتیں اپنے منہ پر لاتے ہیں, اپنی زبان کے ذریعہ سے دوسروں سے کرتے ہیں, تو بہت دفعہ وہ باتیں دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں, اور بہت دفعہ فائدے کا بھی. اور پھر اس طرح سے دل سب چیزوں سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ہیلا باز. کیوں کہ ہر چیز جو ہے وہ کہاں پر ہمیں چھپا کر رکھی ہے؟ کہاں پر بعض کا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خوشی شادمانی کے ساتھ ملتے ہیں, اور منہ سے ایسے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ فلاں میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا فلاں ہمسایہ ہے. لیکن اس کے دل کو ہم نہیں جانتے, اس کے دل کو نہیں جانتے. ہو سکتا ہے وہ اوپر سے, یعنی کہ جنہوں سے پنجابی جو پلال کہنے ہیں, بائبل مقدس سے چاپلوسی بھی کہتی ہے. یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ بھی, میں ہی سمجھ لوں کہ میں بھی ایسا ہوں کہ بہت دفعہ اوپر سے میں کسی سے کہوں گا نہیں جی تسی تے ہے ہی بڑے چنگے ہو, تسی تے ہے ہی بہت بڑے بڑے, یعنی کہ بہت اچھے, میں تہاڈا مداح ہاں, میں تہاڈا پرستار ہاں, اور میں پتہ نہیں تہاڈا کی, یعنی کہ میں سب کچھ ہاں, لیکن اندر سے میں اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور یہ چاپلوسی ہے, یہ دھوکے بازی ہے, یہ دغا بازی ہے, اور اس سے بڑی ہیلا بازی اور کوئی نہیں. اور یہی
ये मेरे पादरी साहब ने, ये किसी दिन नहीं है, लेकिन अंदर से पता नहीं मैं कैसा हूँगा। सिर्फ मेरे तो गल्ला तुम सुनते हो कि पादरी साहब अपनी गल्ला करी होंगे ने। हाँ जी, मैंने पहले कहा कि मैं सिर्फ अपने दिल की ही नहीं बात कर रहा, मैं सारिया गल्ला तुम मेरे दिल पादरी साहब भी सब कुछ ने साड़ी से बिल्कुल ठीक है, अस्सी बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखिए बाइबल मुकद्दस बयान क्या कर दिया, खुदा क्या कहता है कि इंसान का दिल जो है वो लड़कपन से बुरा है, क्योंकि इंसान के दिल के ख्यालात लड़कपन ही से क्या है, बुरे, अच्छे नहीं। और इसी तरह से हम एक दूसरे के दिलों को नहीं परखते, हम एक दूसरे के दिलों को नहीं जानते। अगर दिलों को जानने के लिए, इंसान को एक दूसरे का दिल परखने के लिए अगर कोई इस तरह की जिद लगी हो या कोई ऐसा इस तरह से खाना बना हो कि हम फौरन जो है उस जिद को या खाने को खोल कर देखें, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी एक दूसरे के लिए दिल में कितनी बड़ी नफरत भरी है। ऐसा हो सकता है जेड़े जिथे होवे दिल तो कोई ढक्कन लगा होवे, हाँ जी, ते जेड़े असं एक दूसरे बड़े पलाल करने हैं ना, उस वक्त बंदा ढक्कन खोल के देखे वो तो दिल चों में, ऐसा ही है ना। कई क्या करेंगे ये दिलो नहीं, लेकिन वो वक्त आने पर तीर चलाएंगे। लेकिन याद रखिए दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और इसलिए असं खुदा दा शुक्र करने कि उन्हें साडे दिलों ते कोई ढक्कन नहीं लाया। वरना असीं जिवें किसी नूं मिल जावा, हो जनाब तुसीं ते आई साडे हो, और जनाब तुहाडे तो बगैर साडा किहड़ा है, ते तुहाडे तो बगैर ते साडे तो बगैर असीं एक दूसरे कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई अच्छी हकीकत नहीं रखते, कोई साडी कदरों कीमत नहीं। लेकिन वो उतों तो तुसीं इस तरह करने रहा, फिर विचों पता नहीं एक दूसरे नूं असीं वड्डण पैंदे हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन ये दिल सब चीजों से ज्यादा क्या है, हीलाबाज है, सब चीजों से ज्यादा। जो भी आपको चीजें दिखती हैं या नहीं दिखती, दिल उनमें सबसे ज्यादा क्या है, हीलाबाज। और हीलेबाज का मतलब मैंने क्या बताया, 2-3 मैंने मतलब बताया हीलेबाज के। कौन से अमल बताइएगा? हाँ जी तो बताइए हीलेबाज का मतलब क्या है? मेरा और आपका जो दिल है वो हीलेबाज है, लाइलाज बात की बात है। यानी कि हीलेबाज का मतलब धोखेबाज है, दगाबाज है, ऐसा ही है। और फिर ये लंगड़ा लूला भी है, ये बीमार भी है, लाइलाज है। लाइलाज हीलाबाज और लफ्ज है और लाइलाज और लफ्ज है। पहले ये हीलाबाज है, हीलाबाज होने के सबब से ये लाइलाज है, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये धोखेबाज है, ये दगाबाज है और ये किसी को माफ नहीं करता। हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, शौहर और बीवी एक दूसरे के साथ भी मुखलस क्यों नहीं होते? क्यों? ऊपर से हम एक दूसरे के होते हैं, लेकिन हमारा दिल जो है वो एक दूसरे के साथ मुखलस। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ, मैं भी आप ही में शामिल हूँ, जो एक दूसरे के साथ हम अंदर से जो है वो मुखलस नहीं होते। दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और हमारे अंदर एक दूसरे के लिए इतनी करवाहट, इतनी नफरत, इतना गुस्सा, इतना तफरका बड़ा होता है। अगर ढक्कन खोल कर देखा जाए तो जितना गंद इंसान के दिल में है किसी और के दिल में, याद रखिए ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है। इसलिए ये हीलाबाज और लाइलाज है। बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, जब आप मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं आपको जरा निकालें तो वहां पर क्या लिखा है। यानी कि ये जो हमारे दिल के अंदर गंद भरा होता है, ये जो हमारे दिल के अंदर बुराइयां भरी होती हैं, हर तरह के नुक्स भरे होते हैं, और फिर ये कब पता चलता है, हमारे दिल की हालत का कब पता चलता है। जरा मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं, 19वीं और 20वीं इन आयात को आप कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। जरा मेहरबानी करके जरा पढ़े तो क्या रकम है, क्या लिखा है। मत्ती 15वां बाब और उसकी 18वीं आयत जरा पढ़े तो क्या लिखा है। शाबाश। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं, और जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, वो दिल से निकलती। सुनिए जरा, जो बातें मुंह से निकलती हैं, जो बातें मुंह से निकलती है, वो कहां से निकल रही होती है? कहां से? सभी मेरे साथ रहिए। जो मैं ये मुंह से कलाम, खुदा का कलाम बयान कर रहा हूं, ये कहां से निकल रहा है? मेरे दिल से। क्योंकि बड़े दिनों से मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, इसकी स्टडी कर रहा हूं, और ये कलाम की तैयारी 1-2 दिनों की बात नहीं होती। ये तकरीबन एक हफ्ता लग जाता है कि एक मौजू को, एक टॉपिक को तैयार करते हुए। और फिर ये पहले काम मेरे दिल में आया, ये कलाम मेरे दिल में आया। खुदा ने ये सोच मेरे दिल में रखी कि ये बात, ये कलाम तूने बयान करना है, और ये मैं बयान कर रहा हूं अपने दिल से,
और वही आदमी को नफा करती है। बुरी बातों के बारे में, बुरी बातों के बारे में है कि जो बुरी बातें हमारे अंदर, हमारे दिल में भरी है, वही हमारे मुंह से निकलती हैं। और कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे अंदर भरी हैं? जरा पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि बुरे ख्याल, क्योंकि बुरे ख्याल, क्या भाई? बुरे ख्याल, खून रेजियां। सबसे पहले हमारे दिल के अंदर क्या है? बुरे ख्याल। क्या भाई? बुरे ख्याल। सबसे दूर जो चीज है वो कौन सी चीज है कि बहुत दूर तक वो जाए? क्या हमारी नजर? इधर देखे बहनों, जरा मेहरबानी करके। अक्सर एक दो दफा किसी से सवाल हुआ कि सबसे दूर कौन सी चीज आती है, कौन सी? तो जवाब ये मिलता है कि दूर चीज नजर जाती है, लेकिन नजर में दूध है, नजर में दूध है। देखिए ये दीवार है, इस दीवार के आगे मेरी नजर नहीं जाएगी। और जो सबसे दूर जाने वाली चीज है वो है हमारे ख्याल, वो है हमारे, यानी कि मैं यहाँ हूँ और मैं कहीं पर भी अपने ख्याल ले जा सकता हूँ, इसको कोई रोकथाम नहीं है। और बुरे ख्याल, सबसे पहले हमारे दिल के अंदर क्या भरे हैं? बुरे ख्याल, जो हम किसी और के लिए अपने दिल के अंदर बुरे ख्यालों को जन्म के तौर पे, प्यास के तौर पे लाते हैं। और दूसरी बात क्या है? खून रेजियां। क्या है भाई? खून रेजियां। खून रेजियां क्या है? सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मत्ती 5वें बाब के अंदर जो है लिखा है कि तुम सुन चुके थे या सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था कि तुम खून ना करना, कत्ल ना करना। और ये जरूरी नहीं कि जब हम किसी को चाकू, खंजर या किसी बंदूक या गोली से कत्ल करें, नहीं, हम किसी को कत्ल भी करते हैं तो वो भी दिल से। कैसे? क्यों? दिल से हम कैसे किसी को मार सकते हैं? दिल से हम किसी से कैसे दुश्मनी मोल लेते हैं? कैसे आप अपना बदला ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो कुछ दिल में भरा है वही जुबान पर आता है। और अगर हम किसी का खून करते हैं तो वो भी पहले कहां पर होता है? हमारे दिल के अंदर हम ये सोच रखते हैं, हम ये ख्याल रखते हैं कि हाँ भाई मैं उसको मारूंगा, मैं उसको। जब हमारी एक दूसरे के साथ नफरत होती है, जब हम एक दूसरे के साथ गुस्से रहते हैं, तो समझिए कि हम एक दूसरे के कातिल हैं, हम एक दूसरे के कातिल हैं। तो ये खून रेजियां, सबसे पहले कौन सा ख्याल, बुरा ख्याल हमारे दिल के अंदर आता है? खून करना। और खून करने से मुराद क्या? एक दूसरे पर गुस्सा, एक दूसरे पर बहनें बहनों पर गुस्सा करती हैं, बहन भाई एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ गुस्सा करते हैं, वालिदैन बच्चों पर और बच्चे वालिदैन पर गुस्सा करते हैं, शौहर और बीवी एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं। क्यों? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान का दिल लड़कपन ही से बुरा है और बुरे ख्याल रखता है। इसलिए हम एक दूसरे के लिए कौन सा ख्याल रखते हैं? अच्छा या बुरा? बताइएगा। तो भाई करार जो बन जाओ, हम एक दूसरे के कौन सा ख्याल रखते हैं अपने दिल के अंदर? अच्छा नहीं, बल्कि ये कोई कभी नहीं, तुम्हारे बारे से बड़ा अच्छा ख्याल रखना वो दुनिया का सबसे झूठा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस प्यार करती है कि इंसान का दिल कब से जो है वो बुरा है, कब से? लड़कपन से, शुरू से। और हम एक दूसरे के लिए बुरा ख्याल रखते हैं और गुस्सा, नफरत उसके लिए जब हमारे दिल में होता है तो हम उसके कातिल ठहरते हैं। क्या ठहरते हैं भाई? कातिल। और याद रखिए, जब हम एक दूसरे के साथ गुस्सा होते हैं, नफरत करते हैं, तो हम एक दूसरे के कातिल हैं, एक दूसरे के कातिल हैं। हाँ जी, बुरे ख्याल, खून रेजियां, आगे क्या लिखा है? हाँ जी, ज़िनाकारियां यानी हराम कारियां, आगे चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां। सुनिएगा, बदगोइयां। और फिर दूसरी बात क्या है? यानी कि बुरे ख्याल के बाद खून रेजियों के बाद क्या है? हराम कारियों के बाद क्या है? चोरियां। क्या है भाई? चोरियां। क्या है? ये सारी चीजें पहले हम कहां पर रखते हैं? कहां पर? ये बहुत बड़ा बक्स है, दिल हमारा बहुत बड़ा बक्स है, बहुत बड़ा बक्स है। इसके अंदर पहले हम अपना काम करने को दिल में रखते हैं, इस बक्स में रखते हैं। हाँ भाई, कितने स्थान लावांगे, कितनी छात टपांगे, कितना बलेरा टपांगे, कितनी कांधे टपांगे, कितना बुआ बनाएंगे, और फिर क्या चुराएंगे? ये सबसे पहले कहां पर आता है? अगर आप यशवा की किताब उसका 7वां बाब पढ़े तो वहां पर अकन ने चोरी की थी। अकन ने, किसने चोरी की थी? ये एक बंदे का नाम था अकन, और उसने चोरी की। उसने एक नफीस चादर और सोने की ईंटें वगैरह उसने चुरा ली। और जब उसने चोरी की तो खुदा को बुरा लगा, क्योंकि ये सब कुछ गुनाह के जुमरे में आता है। जब हम इन बुरे दिल को अपने दिल के अंदर किसी भी तरह का बुरा ख्याल, बुरी बात को डाल लेते हैं तो खुदा देखता है।
करूंगा, मैं क्या करूंगा? और किन चीजों की चीज चोरी उसने की? लिखा नफीस चादर, नफीस चादर और सोने की ईंटें। यानी कि उसने पहले अपने दिल में ठहराया कि मैं चोरी करूंगा। हरामकारी करने से पहले हम अपने दिल में ठहराते हैं, कोई भी बुरा काम करने से पहले हम अपने दिल में ठहराते हैं, अपने दिल में इस बॉक्स में उसे जमा करते हैं, जखीरा करते हैं, उसका स्टॉक लगाते हैं और वक्त आने पर उसे पूरा भी कर देते हैं। और जो ही मौका मिलता है हम बख्शते नहीं, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मौका मिलने की जरूरत होती है। और फिर अकल को मौका मिला और उसने क्या की भाई? चोरी। क्या की? जो ही चोरी की। और फिर सुनिएगा, जब उसने चोरी की तो फिर खुदा ने यशवा की फौज को हराना शुरू कर दिया। और यशवा जो है वो खुदा के हजूर औंधे मुंह गिर गया। उसने कहा, खुदावंद तू मुझे दुश्मनों से क्यों मरवा रहा है? क्यों दुश्मन मुझ पर वार हैं? क्यों दुश्मन मुझ पर अटैक कर रहे हैं? क्यों मैं दुश्मनों से मार खा रहा हूं? तो फिर खुदा ने यशवा से कहा, यशवा तू ऊपर उठ, तू औंधे मुंह ना पड़, तू कुरानदाजी करेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि तू क्यों मार खा रहा है, तू क्यों हार रहा है, दुश्मन तुझ पर क्यों वार होता जा रहा है, दुश्मन तुझको क्यों जो है वो मार रहा है, तू क्यों मार खा रहा है। कुरानदाजी कारण तुझे पता चल जाएगा कि आखिर तू मार क्यों खा रहा है। बुरे कामों का, बुरी बातों का नतीजा क्या अच्छा हो सकता है? नो, जैसा करोगे वैसा। बच्चे साहब 2 इतवार पहले इस मैसेज को दे रहे थे, जैसा करोगे वैसा। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, और अच्छा आदमी अपने अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी अपने बुरे खजाने से बुरी चीजें। अगर जिसका दिल अच्छा है यकीनन वो उसका खजाना अच्छा है, और जिसका दिल बुरा है उसका खजाना भी बुरा है, वो बुरे खजाने से बुरी चीजें ही निकालेगा। और जब यशवा से खुदा ने कहा कि पड़ताल करके तू क्यों मार खा रहा है, तेरा घराना क्यों मार खा रहा है, तू क्यों दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, क्यों दुश्मन तुझको मारता चला जा रहा है। और जब यशवा ने ऐसा किया, कुरानदाजी की, तो कुरानदाजी से पता चला कि अकन नाम के बंदा ने चोरी की है, अकन नाम के बंदे ने चोरी की है। जब पता चल गया तो यशवा ने उसको बुलाया और कहा, अकन ये तूने क्या किया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और फिर खुदा ने यशवा से कहा कि आप इसको सजा दे, आप इसको। सुनिएगा चोरी की सजा क्या थी, सुनिएगा। खुदा ने यशवा 7वें बाब के अंदर चोरी करने वाले अकन बनाम शख्स को क्या सजा दी? खुदा ने कहा कि इसको बाहर ला, इसको सिर्फ एक अकेले को बाहर ना ला, इसकी बीवी और बच्चों को भी बाहर ला, इसका जो भी डेरे के अंदर यानी इसके घर के अंदर जो कुछ भी है वो भी सब कुछ निकाल, और सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर, और इस अकन को, इसकी बीवी और बच्चों और इसके घर की सारी अशिया समेत आग लगा दे। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने देखिए, हम कहते हैं कि नहीं एक कोई गुनाह नहीं, और नहीं कैसे बात कोई कर देना, कैसे चुगली कर देना, बुरे ख्याल होना, और फिर खून रेजियां करना, फिर हरामकारियां करना, फिर बदकारियां करना, और फिर चोरियां करना, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं, सारे कर देने पे। लेकिन याद रखिए फिर हो क्या रहा है, अगर सारे कर रहे हैं तो फिर पूरी दुनिया के अंदर हालात देखिए कैसे हैं। ये खुदा ऐसा करना नहीं चाहता, ये हमारे कामों की वजह से ऐसा हो रहा है। और फिर अकन को कैसी सजा मिली, कैसी? उसके घराने समेत, उसके सारे मालो बाप समेत उसे क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? खुदा ने कहा कि इसके बाद इसका अंजाम देकर कोई भी चोरी ना करेगा। लेकिन याद रखिए आगे बेटा कल चोरियों के आगे क्या लिखा है, पढ़े जरा। क्या लिखा है? झूठी गवाहियां। क्या भाई? झूठी गवाहियां। आप जाएं, थानों में जाएं, अदालतों में जाएं, और फिर किसी और अदारे में भी जाएं, आम अदारों के अंदर भी बहुत से लोग झूठी गवाहियां दे रहे हैं। वो पैसे लेते हैं, वो झूठी गवाहियां देने वाले पैसे लेते हैं, और वो जाकर वहां खड़े हो जाते हैं ऐसे अदारों के अंदर, और वहां पे क्या कितनी गवाहियां, कितने पैसे, वो मुखा करते हैं और झूठी गवाहियां देते हैं। क्या करते हैं? झूठी गवाहियां देते हैं। आगे क्या लिखा है जी? आगे बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं, यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यानी कि ये
भी ऐसे ख्यालात हैं? कौन किससे नहीं बोल रहा? हाँ जी, ऐसे ख्यालात है ना, तो क्या फिर कोई दरियाफ्त कर सकता है नहीं कर सकता? मेरे और आपके दिल को इस वक्त कोई दरियाफ्त कर रहा है कि नहीं कर रहा? बस बताइएगा। नहीं समझ रहा भाई? जो कुछ भी हमारे दिल के अंदर इस वक्त है, चाहे अच्छा है या बुरा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा ही हमारे अंदर दिल के अंदर, जो कुछ भी अच्छा या बुरा हमारे दिल के अंदर है, क्या उसे कोई दरियाफ्त कर रहा है कि नहीं कर रहा? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्योंकि खुदा के सामने हर चीज बेपर्दा और खुली है। हालेलुया, हर चीज खुली और बेपर्दा है। इस वक्त जो कुछ भी हमारे दिल में है, नफरत है, गुस्सा है, तफरका है, अगर किसी के साथ अच्छा सलूक या बुरा सलूक ये हम अपने दिल में रखकर बैठे हुए हैं, तो इसको दरियाफ्त कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मेरे और आपके दिल को कौन पढ़ रहा है? खुदा पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? खुदा। अगर जब खुदा हमारे दिल को, मेरे और आपके दिल को देख रहा है, परख रहा है, परख रहा है, जांच रहा है, बेपर्दा और खुला है हमारे, मेरा और आपका दिल, तो फिर मेरे और आपके दिल में कैसा ख्याल होना चाहिए? बताइएगा। उनसे पूछ रहे हो कैसा ख्याल होना चाहिए? मेरे और आपके दिल में एक दूसरे के लिए कैसा ख्याल होना चाहिए? अच्छा ना के बुरा, ना के। अगर हमारे दिल से बुरे ख्याल ना निकलेंगे तो खुदा को बड़ी अच्छी सोनी जांच है, उसे पता है कि कैसे मैंने इसके दिल में से बुराई को निकालना है। जरा मेरे साथ निकालिए ईमान की किताब उसका दूसरा बाब। और फिर क्या होता है जब हमारे दिल के अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं, तो दरियाफ्त करने वाला भी है जो दरियाफ्त करता है, हमारे दिलों को पाक कर सकता है, हमारे दिलों को साफ कर सकता है, हमारे दिलों को जो धुंधला पड़ा है इसे बिल्कुल क्लियर कर सकता है। वो क्या है? कौन? जरा ईमान की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 37वीं आयत को जरा पढ़े तो क्या लिखा है? शाबाश, पढ़े जो पहले निकाले वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। शाबाश की माल दूसरा बाब उसकी 37वीं आयत से पढ़े। शाबाश, जरा उठ कर पढ़े। शाबाश देवी पढ़े। शाबाश बेटा उठ कर जरा पढ़े। जब उन्होंने सुना, सुनिएगा, सुना क्या? जब उन्होंने सुना तो क्या हुआ? तो उनके दिलों पर चोट लगी। उनके दिलों पर चोट लगी। जैसे मैं आपसे खुदा का कलाम बयान कर रहा हूँ, आपके दिलों को झंझोड़ रहा हूँ, आपके दिलों को उजागर कर रहा हूँ, इसी तरह पतरस रसूल जो है उसने ऐसा किया और उसने खुदा के लोगों के सामने, यहूदियत के सामने, इस्राएलियों के सामने उनके ज़हन को झंझोड़ा, उनके दिलों को झंझोड़ा, उनको झुकाया। और जब उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया कि तुमने मसीह खुदावंद को सलीब पर देकर मरवा दिया, यानी कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से यीशु मसीह ने दुख उठाया, यीशु मसीह कुर्बान हुआ, यीशु मसीह बलिदान हुआ और तुम्हारे गुनाहों के लिए तुम्हारे गुनाहों ने यीशु मसीह को मरवा डाला। जब इन बातों को सुना तो लिखा उनके दिलों पर चोट लगी। उनके दिलों पर देखिए, जब खुदा का कलाम सुने, जब आपके दिल को वो खुदा का कलाम झंझोड़ता है, आपके दिलों को खुदा का कलाम जो है वो खाली करता है, आपके दिलों को जो है वो खुदा का कलाम जगाता है, जो सोया हुआ है उसे जगाता है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब उनके दिलों पर चोट लगी तो उन्होंने पूछा, ऐ साहब हम क्या करें? हम क्या करें? ये खुदा का कलाम जब हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या आप मुझसे बाद में लड़ने लगेंगे? हाँ जी, क्या यहूदी लड़ते थे रसूलों के साथ? चलो जी सारे ने सामने तुसा साडे दिल का हाल खोल देता है, तो सारे ने सामने क्या देता तुसी गुनहगार हो, सारे ने सामने क्या देता है कि तुसी भाई यीशु मसीह ने तुसा मारे हैं। क्या वो लड़ना चाहते तो लड़ सकते थे, लेकिन वो लड़े नहीं। उन्होंने अपने दिलों पर गौर किया। हालेलुया, कि हमारा दिल जो है वो बुराई से भरा है, हमारा दिल जो है वो गुनाह से भरा है, हमारा दिल जो है वो कसूर से भरा है। उसी वक्त उन्होंने अपने कसूर को माना, अपने गुनाह को माना और फौरन चिल्ला कर बोले, ऐसा वो हम क्या करें? हम इस दिल का हल क्या है? इस दिल को दुरुस्त करने का, इस दिल को पाक करने का, हाथों को साफ करने का जरिया क्या है? ऐसा वो बताओ कि हम क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा? पढ़े बेटा क्या लिखा है? हाँ जी, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। हालेलुया, तौबा करो अपने गुनाहों से, जो यीशु मसीह पर तुमने
वो अपने घर आया, वो तुम्हारे घर आया, क्योंकि यीशु मसीह का घर तुम्हारा घर था और तुमने उसे रद्द कर दिया, तुमने यीशु मसीह को झुठला दिया और उस पर ईमान ना लाए, उसे कबूल ना किया। इसलिए तुम्हारे नाम मानने की वजह से उसने तुम्हारे गुनाह की खातिर अपने आप को शरीर पर बलिदान कर दिया। बजाय इसके कि तुम उसे छुड़ाते, बजाय इसके कि तुम उस पर ईमान लाते, बजाय इसके कि उसको तुम रद्द ना करते, उसको तुम ना झुठलाते, बल्कि खुदा का बेटा जानकर यीशु मसीह को अपना शख्स निजातीदा मानकर उस पर ईमान लाते, बल्कि शरीर पर तुमने क्या कहा? इसे मसलूब कर, इसे मसलूब कर, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। और पतरस रसूल ने ये कलाम सरे बाजार सुनाया, सरेआम सुनाया, हजारों की तादाद में लोग जमा थे और पतरस ने कहा तुमने यीशु को मारा, तुमने। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे गुनाहों ने यीशु को मारा, तुम्हारे गुनाहों ने यीशु को मारा, तुम्हारे कसूरों ने यीशु को मारा। तुम उस पर ईमान नहीं लेकर आए और वो तुम्हारे गुनाहों के लिए मरा ताकि तुम हमेशा की जिंदगी पाओ। और जब उन्होंने सुना तो लिखा कि उनके दिलों पर चोट लगी, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उन्होंने कपकपाना शुरू कर दिया, वो डर गए, वो खौफजदा हो गए कि ना जाने अब क्या होगा। हमने खुदा के बेटे को झुठला दिया, हमने खुदा के बेटे यीशु पर ईमान नहीं लाते लेकर आए और हमने उसे अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजातीदा कबूल नहीं किया। हालांकि वो मेरे गुनाहों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए शरीर पर मर गया, लेकिन हमने उसे कबूल ना किया, हमने उसकी मसलूबियत को भी कबूल ना किया, उसके मर जाने, उसकी कुर्बानी को भी कबूल ना किया। जब सारी बातों को याद करते हैं तो फिर चिल्लाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं और एक ही सवाल करते हैं, और वो सवाल क्या था? हम क्या करें? अगर अभी तक हम गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं, गुनाहों की जिंदगी बसर कर रहे हैं और अपने दिलों में वही पुराने ख्यालात लेकर बैठे हैं और अपनी गुनाहगारी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हमें भी सवाल करना चाहिए, हम क्या करें? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या? पतरस ने उनसे कहा तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। तौबा से मुराद है यानी कि मुड़ जाओ, अपने बुरे ख्यालों को दिल से निकाल दो, खूनरेजियों को निकाल दो, चोरियों डकैतियों को निकाल दो और फिर इस तरह तुम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लो। जब तुम अपने गुनाहों का इकरार करोगे, जिसे तौबा का नाम दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर तुम रूह कुद्दस से इनाम में पाओगे, रूह कुद्दस से इनाम में पाओगे। यानी कि तुम अपने गुनाहों का इकरार करो, तुम अपने गुनाहों से तौबा करो, तुम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्सी निजातीदा मानो, कबूल करो और तुम हमें हर एक यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेगा तो रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। जब उन्होंने इन सारी बातों को सुना, जब उनकी सारी बातों को, कलाम की बातों को सुना जो पतरस बयान कर रहा था, ये पतरस का आवाज है और वो बयान कर रहा है, ये कलाम है खुदा का, पतरस बयान कर रहा है। पतरस के दिल में खुदा का कलाम भरा था और वो उस कलाम को अपने दिल से, अपने मुंह के जरिए बयान कर रहा था और सुनने वालों के दिलों में बड़ाई भरी थी, गुनाह भरा था, कसूर भरे थे। और जब उनके उस गंदे दिलों पर चोट लगी तो वो सब कुछ निकल कर बाहर आ गया और उन्हें सवाल किया कि हम क्या करें? तो उसका हल क्या है? अगर हमारे दिल अच्छे नहीं, हमारा दिल जो है वो गुनाह आलूदा है, तो जवाब क्या है? हम क्या करें? कैसे इस दिल को साफ कर सकते? कैसे? इस चश्मा के अंदर जो है वो फजल का नमक छिड़कने की जरूरत है, फजल का नमक डालने की जरूरत है। जिस तरह का जो कि वो अलीशा जाता है यरू में, तो वहां पर लिखा है वो शहर के इकट्ठे होकर आए और उस अलीशा से कहा कि देख हमारा शहर बड़े ठिकाने पर है, बड़ी जगह पर है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन एक बात की कमी है कि यहाँ का पानी ठीक नहीं। और पतरस ने क्या कहा? एक नया प्याला और उसमें नमक डालो। और वो नया प्याला लेकर पतरस के पास आए और अलीशा के पास आए और अलीशा ने उस प्याले में नमक लिया और नमक लेकर जो है वो चश्मा के पास गया और वो चश्मा के अंदर उसने वो नमक फेंक दिया और जब फेंक दिया तो लिखा कि वो पानी बिल्कुल ठीक हो गया। आज तक ठीक है। अगर हमारा चश्मा ठीक नहीं,
हमारा दिल का चश्मा बुरा है, गंदा है, तो फिर हमें रूह कुदरत के नमक की जरूरत है। हमें खुदा के फजल के नमक की जरूरत है कि हमारे दिलों के बुरे दिलों के चश्मों के अंदर जो है वो बता रहे रूह कुदरत नमक की तरह, खुदा का कलाम नमक की तरह, खुदा का फजल नमक की तरह जो है वो काम करे, ताकि हमारे दिल के चश्मे का पानी जो है वो बिल्कुल पाक और साफ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, उनके दिलों पर चोट लगी। ये खुदा का कलाम बहुत बड़ा नमक है, ये खुदा का कलाम बहुत बड़ा नमक है। अगर हमारे दिलों के बुरे दिलों के चश्मों के अंदर खुदा के कलाम का बीज बोया जाएगा तो यकीनन ये बेतासीर नहीं जाएगा। इब्तिदाई कलीसिया ने भी खुदा का कलाम सुना, खुदा का कलाम सुना, और उनके कलाम को सुनने के वसीला से उनके दिलों पर चोट लगी, और फिर उन्होंने तौबा की। फिर उन्होंने कलाम के मुताबिक तौबा की, दिली तौबा की, हकीकी तौबा की। क्योंकि जब हमारे दिल का हमें एहसास हो जाता है कि हमारा दिल वाकई बुरा है, तो जब ये दिल कलाम के सबब से टूट जाता है तो उसे दिली और हकीकी तौबा कहते हैं। हालेलुया। और जब तक हमारा दिल नहीं टूटता खुदा के कलाम के सबब से तो हमारी कोई तौबा, वो ये तौबा नहीं कि आओ तो तौबा करा दिया, आओ तो बात में दे दिए, ऐसा नहीं है। तौबा असल हकीकी तौबा, सच्ची तौबा, दिली तौबा जब तक हमारे दिल पर खुदा के कलाम की चोट ना लगे, खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम की चोट हमारे दिलों पर लगे, और फिर हमारे दिल से ये आवाज निकले कि हम क्या करें, हम तो जवाब क्या है? तौबा करो। जवाब क्या है? तौबा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी तौबा से मुरादी का शुरू किया, आगाज किया। यीशु मसीह ने भी तौबा के लफ्ज़ ही से, तौबा ही से जो है वो मुरादी का शुरू किया। लिखा कि उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और शागिर्दों ने भी खुदा ने यीशु मसीह से सीखा, यीशु के रसूलों ने भी अपने उस्ताद से सीखा है, नबी से सीखा, खुदावंद से सीखा, और बाद में फिर ईमान की किताब पढ़े तो उन्होंने मुनादी का आगाज तौबा से किया। हालेलुया। क्योंकि जब तौबा नहीं तो हमारी मुनादी पे फायदा है। जब भी अपनी मुनादी का आगाज करें, कहां से करें? तौबा से। क्योंकि तौबा से हमारी जिंदगी में चेंज आ जाती है। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं कि वाकई वो मेरे गुनाहों के लिए मरा, उसने मेरे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पर बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, मार दिया, और उसके मार खाने से मैंने अपनी निजात को हासिल किया है। जब इस बात को हम जान लेते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे गुनाहों के लिए मरा, तो फिर हमारा दिल टूट जाता है और दिल से एक ही आवाज निकलती है, और क्या होती है कि हम क्या करें, मैं क्या करूं? और उसका जवाब क्या है? तौबा। उसका जवाब क्या है? उसका जवाब सिर्फ तौबा है। तौबा करें। क्या करें? किससे तौबा करें? तौबा किससे करनी है? हाँ जी, अपने गुनाह से। क्यों करनी है? क्योंकि मेरा दिल गुनाह से भरा है। मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं जो खुदा को पसंद आए। मेरा दिल लड़कपन से बुरा है, मेरा दिल लड़कपन से शुरू से बुरा है। जैसा कि ज़बूर 51 की 5वीं आयत में दाऊद कहता है कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। मेरा दिल जब से मैं अपनी माँ के पेट में पड़ा हूँ तब से गुनहगार है, तब से मैं गुनाह की हालत में अपनी माँ के पेट में पड़ा, मैंने जन्म लिया। और उस वक्त तक इंसान गुनहगार है जब तक वो तौबा नहीं करता, जब तक वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना शख्स निजात देना कबूल नहीं करता, जब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, कभी नहीं देख सकता। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जरा मेरे साथ दूसरा पतरस उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत को जरा निकालें। दूसरा पतरस 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत को बहनों में से कोई बहन पढ़ेगी जी। अगर हम तौबा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर हम तौबा नहीं करते तो फिर क्या होता है? क्या होगा इन फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, क्योंकि यीशु जल्द आ रहा है। दूसरा पतरस 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत को जरा पढ़े तो क्या लिखा है? शाबाश बेटा पढ़े। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं, खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता। कौन से वादा में? यीशु ने कहा मैं जल्द आ रहा हूँ, यीशु ने कहा मैं जल्द आ रहा हूँ, और वाकई उसने वादा किया कि मैं जल्द आ रहा हूँ। और खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। आगे बेटा क्या लिखा है? जैसी देर बाद लोग समझते हैं बल्कि तुम्हारे बारे
आने वाला है। अगर हमने अपने गुनाहों का इकरार ना किया, अगर हमने अपने गुनाहों से तौबा ना की, तो जब यीशु आएगा, अदालत करेगा और फिर हमें कहाँ फेंक देगा, कहाँ डाल देगा? आपकी झील में, दोस्तों में। ये कोई डराने धमकाने वाली बातें नहीं है। इस वक्त दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा गुनाह का सबब है। इस वक्त जो गुर्बत की चक्की पिसी जा रही है, हम पिस रहे हैं, ये सब कुछ गुनाहों की वजह है। जो कुछ भी लड़ाइयाँ झगड़े धंधे फसाद दहशतगर्दियाँ मार धाड़ हो रही है, ये सब कुछ गुनाह की वजह है। जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ गुनाह की वजह है, क्योंकि मेरे और आपके दिल में क्या भरा है? गुनाह। जब हम खुदा के कलाम के सबब से इस दिल को खुदावंद के हवाले कर देंगे, खाली कर देंगे और कहेंगे कि क्या करें, तो जवाब यही है कि तौबा करो। जवाब क्या है? तौबा करो। हालेलुया। और किन लोगों ने ये सवाल किया कि क्या करें? जिन्होंने कलाम सुना और उनके दिलों पर कलाम की चोट लगी, कलाम की चोट लगी। और फिर बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? इमाल दूसरे बाब की जरा 41वीं आयत निकालें, जरा इमाल दूसरे बाब की 41वीं आयत निकालें, तो वहां पर लिखा है, जिन्होंने कलाम सुना उनके दिलों पर चोट लगी, उन्होंने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 लोगों में शामिल हो गए। यानी कि इब्तिदाई कलीसिया जो है वो कलाम के सबब से वजूद में आई। उनके दिलों पर कलाम की चोट लगी और उन्होंने कलाम की चोट अपने दिलों पर लगवाई और फिर सवाल किया कि क्या करें, और जवाब तौबा करो। और कितने लोगों ने तौबा की? कितने लोगों ने तौबा की? 3000। कितने लोगों ने तौबा की? 3000 लोगों ने तौबा की। और इसका मतलब 3000 से ज्यादा लोगों ने खुदा का कलाम सुना होगा और उनमें से तौबा कितनों ने की? 3000। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम मेरे और आपके लिए, आज का कलाम, आज का कलाम मेरे और आपके लिए है। अगर आज के कलाम के सबब से किसी के दिल पर कलाम की चोट लगी है, अब सभी अपनी आंखें बंद करें, सभी अपनी आंखें बंद करें, मेहरबानी करके सभी अपनी आंखें बंद करें। अगर आज के कलाम की चोट किसी के दिल पर लगी है, तो वो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है, भाइयों में से या बहनों में से। अगर कलाम की चोट किसी के दिल पर लगी है और वो इस बात को समझता है कि मैंने खुदा के कलाम को सुना और मेरे दिल पर खुदा के कलाम की चोट लगी है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए जवाब है को तौबा करें। हालेलुया, हालेलुया। तौबा करें, तौबा करें। सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सुरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और खुदा के कलाम से ना कोई डराने धमकाने वाली बात है, क्योंकि वक्त नजदीक है और जो कोई तौबा ना करेगा वो जरूर हलाक होगा। और खुदा किसी की हिलाकत नहीं चाहता, चाहता है कि किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। हमारी 2 बेटियां हैं जो अपने कदमों पर खड़ी हैं, बेटी नैविश है और दोनों, एक बेटी मिशल है। ये दोनों बेटियां अपने कदमों पर खड़ी हैं और मैं गुजारिश करूंगा तमाम अपने हम खिदमत भाइयों से वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं ताकि हम इन बेटियों के लिए दुआ कर सकें। हालेलुया। और सभी जमात भी बेटियों की तरफ अपना हाथ बढ़ाए। बेटी नैविश है और बेटी मिशल है, इनके लिए हम दुआ करेंगे। सभी खादम मिलकर इनके लिए दुआ करेंगे। खुदा कादर मुतली खुदा, तेरी बेटियों ने खुदा के कलाम को सुना, तेरे कलाम को सुना, तेरी इब्तिदाई कलीसिया की तरह इनके दिलों पर चोट लगी, तेरे कलाम से चोट लगी और इन्होंने अपने दिल में ये ठाना कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें तेरी हजूरी में, तेरे लोगों के दरमियान, ताकि हम तेरी जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है उसको कबूल कर सके, उसको हासिल कर सके। तेरी बेटियों ने, बेटी महविश के लिए, बेटी मिशल के लिए दुआ करता हूँ, अपनी बेटियों को अपनी हजूरी में ले, अपने पाकरों की रहनुमाई और मदद कसरत से ताकर इनके दिलो दिमाग ज़हन अकल पर खुदा तेरे पाकरों का कंट्रोल रहे। जबकि इन्होंने तेरी हजूरी में अपने गुनाह का इकरार किया और अपने दिल से सच्ची और हकीकी तौबा की है, खुदा बाप इन्हें कसरत से बरकत और सलामती दे और आइंदा जिंदगी में खुदा दिन का साथ दे। तेरा पाक में इनकी मदद रहनुमाई करे, तेरा पाक लोग जिस पर ये ईमान लेकर आए हैं इनकी हिफाजत करता रहे और तेरा कलाम जो है इससे ये सिर असुदा रहे। इन बेटियों पर तेरी कुव्वत कुदरत भरा, निजात भरा, जिंदगी सलामती भरा हाथ हमेशा से हमेशा तक बना रहे, ताकि ये बेटियां हमेशा दिल से खुदा तुझे अपना शख्स निजात देता इसी तरह कबूल करते हुए तेरी दूसरी आमद तक तुझे में कायम मजबूत और पुख्ता रहे, ताकि इन जिंदगियों से, बदरों से, इनके घरानों से तेरा जलाल ज़ाहिर होता रहे और तेरा यीशु नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। खुदा हम सबको कसरत की बरकत दे।